हेलो। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है बेटे? क्या बोले सर? आवाज आ रही है क्या? आवाज सुने आ रहा है ना? हाँ सर, क्लियर? हाँ। हाँ, क्लियर सुने आ रहा है ना? यस सर। हाँ ठीक है, देखो। हाँ, टुडे वी आर गोइंग टू सी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, okay, in funaria. Before going to discuss the funaria, sexual reproduction, see here, this is one important thing, that is the aphosphory. Actually, it is a new term, okay. As I have told you in previous period, in funaria, the asexual reproduction takes place by aphosphory. What is aphosphory? Here, the development of gametophyte or thallus formation takes place from the sporophyte without the formation of spores. That is known as, इसको क्या बोलते हैं अपन? अपोस्पोरी। क्या बोलते हैं इसको? अपोस्पोरी। Here in aphosphory, any vegetative cells of the sporophytes may form the green photonemal filaments which bears lateral words. These words later developed into leafy gametophyte. The gametophyte thus formed are diploid. The sexual reproduction in such gametophore results in the formation of tetraploid zygote. The sporophytes from the tetraploid are sterile because they do not capable of bearing the spore. Okay, so here you remember that in aphosphory, what happens in a, because actually it is important. This is new term for you. Aphosphory means from the sporophytic cell, new thallus or new plant of Funaria is formed that is diploid, and here it is not formation takes place by the spores. Here the diploid gametophyte produces the diploid sex organ, whether it may male or female sex organ. Definitely, the male and female sex organ, when they unite and tetraploid zygote is formed. And these tetraploid zygote are sterile. They do not capable of bearing spores. So this is about the aphosphory. This is the important thing. Next thing, समझ आ रहा है क्या आपको ये? हेलो, aphosphory समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, आए। हाँ? हाँ सर, हाँ। अगर नहीं आ रहा तो देखो। हाँ, अब एग्जाम्पल देता आपको। अब ध्यान क्या है? इन दिस केस यू रिमेंबर दैट हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। अब याद रखो, हेप्लॉइड किसको बोलते हैं, डिप्लॉइड किसको बोलते हैं? जनरली द गैमेट्स आर हेप्लॉइड। गैमेट्स कैसे रहते हैं? डिप्लॉइड रहते हैं। मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलने के बाद डिप्लॉइड तैयार होता है। बट यहाँ पे कैसा है? डिप्लॉइड गैमेट तैयार हो रहे, उससे जो तैयार हो रहा है प्लांट, डिप्लॉइड प्लांट तैयार हो रहा है। और डिप्लॉइड से बाद में रिप्रोडक्शन होने के बाद टेट्राफ्लोइड तैयार हो रहे। अब हेप्लॉइड किसको बोलेंगे? देखो, ये खाना क्रोमोसोम कम ज्यादा रहेगा तो अब्नॉर्मैलिटी होती। समझ आ रहा है? इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग कितने क्रोमोसोम रहते हैं? कितने क्रोमोसोम रहते हैं ह्यूमन बीइंग में? मालूम है क्या? हेलो, आवाज आ रही ना? 46 क्रोमोसोम रहते हैं। 46 कितने रहते हैं? हाँ, आ रही सर, आवाज आ रही। ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम रहते हैं? 46। अगर एक कम ज्यादा एक हो गया तो क्या होता है? अब्नॉर्मैलिटी तैयार होती है। बाद में देखेंगे तो बच्चे बस बड़े हो जाते हैं, समझ नहीं रहती। देख ऐसे बच्चे देखेंगे तुमने, तो ड्यू टू द abnormality of chromosomes. But here in case of funaria, the aphosphory formation takes place. Means here the sporophytic cells, they are diploid, they develop into new plant. That is known as aphosphory. That is without formation of the spores. So when the gametophyte is diploid, definitely the gametes are diploid. The male gametes are diploid, the female gametes are diploid. When these two gametes they unite, tetraploids are formed. Tetraploid मतलब चार उसमें और रहते, सेट रहते क्रोमोसोम के, इसमें उनको tetraploid हो रहे। They do not produce the spores. They are sterile. Sterile मतलब they are not fertile. ठीक है? अब इसके आगे देखो आप। अब नेक्स्ट थिंग है,
अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूनेरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूनेरिया. Now definitely, actually, whether it may be vegetative reproduction, whether it may be sexual reproduction, whether it may be asexual reproduction. Okay, what is the purpose of the sexual reproduction? और रिप्रोडक्शन क्यों होता है? रिप्रोडक्शन क्यों हो रहा है इसमें? कई वास्ते होता है? Because it increase the population of that plant. बराबर है? It increase the population of that plants. That is the reproduction. मैंने पहले बताया था रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? Production of new individual from their parents. In Marchantia or in Funaria, here the reproduction is of two types. One is vegetative reproduction, second is asexual reproduction. Here, this is the sexual reproduction. In case of sexual reproduction, the sex organs, they are takes part in reproduction. Sex organ, they takes part in the actually reproduction. So this is known as sexual reproduction. Or you can say that in sexual reproduction, the male and female gametes are formed. Male and female gametes are formed. For example, in case of higher plants, in 11th and 12th, you have seen the sex organs, they are present inside the flower. That is androecium and gynoecium. Androecium and gynoecium. But here, in case of bryophytes, the sex organs are antheridium and archegonium. Antheridium and archegonium. Here, the antheridium works as a androecium. Archegonium works as a gynoecium. Okay? So here, see here, this is the sexual reproduction. अब देखो यहाँ पे sexual reproduction बताया वाला है. Sexual reproduction is oogamous. तीन तत्व है. The sexual reproduction कैसा है यहाँ पे? oogamous type. oogamous किसको बोलेंगे? Here the female gamete is non-motile. The gamete is motile. मेरे हिसाब से तो नहीं था. That is oogamous type. याद रखो oogamous किसको बोलते हैं? Here the male reproductive organ is known as antheridium. बताया अभी आपको. And the female sex organ is known as archegonium. The female sex organ is known as कौन सी मशीन लाया था? archegonium. हाँ. मैं वाला छुट्टी हुआ था कर रहा होता था. अपना माँ तो नहीं के सामने का एडजस्ट फैन को छोड़ दे. ऊपर का थोड़ा वो साइज था. इस मशीन दिखाया. मशीन लाया था निकल. मशीन लाया. बोले कल तक लग जाएंगे. बोले मशीन कितनी लाया ली. आज ओवर जाएंगे. बोले कर दूसरी कल देखूंगा. हेलो, आ रही ना आवाज? जी सर आ रही. हाँ, रिजल्ट देखो. हाँ, ठीक है. तो हियर द मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज नोन एज एंथेरिडियम. ये याद रखो. एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज आर्चिगोनियम. अब जैसा हम क्या करते हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस आपने पढ़ा हुआ है, जसवंती का प्लांट, उसमें एंथेरिडियम की जगह एंड्रोशियम पड़ा वाला है और आर्चिगोनियम की जगह गाइनोशियम. याद है क्या? ठीक है. अब याद रखो यहाँ पे, हियर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज एंथेरिडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज आर्चिगोनियम. सी हियर द फ्यूनेरिया इज मोनोसियस. अब मोनोसियस किसको बोलेंगे? हियर द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, they are born on the same plants but on different branches. That is known as monoecious and it is also known as autoecious. अब याद रखो मोनोसियस ऑटोसियस सेम है. इसमें क्या है? एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया डेवलप ऑन द सेपरेट ब्रांचेस ऑफ द सेम प्लांट. एक ही झाड़ में क्या हो रहा है? मेल सेक्स ऑर्गन आ रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आ रहा है. ऐसे उसको क्या बोलेंगे? मोनोसियस. मोनोसियस क्यों बोलेंगे? अगर एक ऐसा नबातात है जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, उसे क्या बोलेंगे? मोनोसियस या ऑटोसियस. फॉर एग्जांपल आपने देखे थे, इन्होंने एग्जांपल देखा जासवंती का, उसमें क्या था? एंड्रोशियम था, गाइनोशियम था, इसलिए इसको मोनोसियस बोलो. हाँ, जनरली द प्लांट्स आर मोनोसियस. द प्लांट्स आर मोनोसियस because male sex organ and female sex organ they are present inside the same plant or same flower.
अगर समझो इसका अपोजिट कैसा है, डायोसियस। डायोसियस में क्या है, मेल अगर अलग है, फीमेल अलग है, इसको डायोसियस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानों का कैसा रहता है, मेल अलग रहता है, फीमेल अलग रहता है, ऐसी कंडीशन को बोलते डायोसियस। तो याद रखो मोनोसियस और डायोसियस, ठीक है। तो हियर द थैलस इज मोनोसियस, थैलस इज मोनोसियस। अब इसमें क्या है, देखो सेक्स ऑर्गन्स आर बोर्न ऑन द लीफी गैमेटोफोर इन द टर्मिनल क्लस्टर। अगर देखो अभी बताता आपको आगे, ठीक है। द मेन शूट ऑफ लीफी गैमेटोफोर वियर्स एंथ्रिडिया एक मेल ब्रांच। अब यहाँ पे बताया हुआ देखो मेल ब्रांच, इसमें क्या है, एंथ्रिडियम है, इसमें क्या है, एंथ्रिडियम है। तो एक्चुअली दिस इज द सेक्शन ऑफ मेल ब्रांच, longitudinal section of male branch, show that it affects expand the convex shape. It wears large number of reddish brown or orange antheridial or antheridia in a different stage of development. So these are the antheridia. Here देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि antheridia है, ठीक है। The projected antheridia are surrounded by rosettes of spreading leaves called perigonial leaves. इसका आतराफ क्या है, ल्यूज है, इसलिए उसका और पेरिगोनियल ल्यूज, ठीक है। द एंथ्रिडियल क्लस्टर्स, अब यहाँ पे दिया देखो, दीज ल्यूज आर नोन एज पेरिगोनियम, उसके आतराफ जो ल्यूज है उसको पेरिगोनियम बोल रहे हैं। यहाँ क्या आगे देखो, एंथ्रिडिया आर इंटरमिंगल्ड विथ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्राइड हेयर लाइक क्लब शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड पैराफाइसिस। इसके क्या बोल रहे हैं, पैराफाइसिस। अब याद रखो पैराफाइसिस क्या है, तो दीज आर द स्ट्राइल। स्ट्राइल बोले तो जो फर्टाइल नहीं है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले रहे, उसको बोल रहे स्ट्राइल। ऐसे क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द पैराफाइसिस। पैराफाइसिस का काम क्या है, द पैराफाइस स्टोर वाटर, प्रोटेक्ट डेवलपिंग एंथ्रिडिया, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस एंड डिहाइसेंस ऑफ द एंथ्रिडिया। ये क्या काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस काम करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं और एंथ्रिडिया को डिहाइज करने में मदद करते हैं। तो एंथ्रिडिया को डिहाइज क्यों करते हैं, बिकॉज दिस एंथ्रिडिया प्रोड्यूसेस द मेल गैमेट्स। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनियम, एंथ्रिडियम, दिस इज द एंथ्रिडियम, स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रिडियम। द एंथ्रिडियम इज क्लब शेप्ड, कैसा है, क्लब शेप्ड, तो अंगूठा जैसा है ना, अंगूठा, अंगूठा कैसा है। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज शॉर्ट मल्टीसेलुलर स्टॉक, स्टॉक बोलते डंडल एंड डंटल, द बॉडी ऑफ एंथ्रिडियम। यहाँ पे दिया हुआ है देखो, दिस इज द स्टॉक एंड दिस इज द बॉडी। द बॉडी ऑफ एंथ्रिडियम हैज स्ट्राइल सिंगल लेयर जैकेट, ठीक है, दिस इज द जैकेट और कवरिंग। अब यहाँ बताया हुआ है दिस इज द जैकेट और कवरिंग, यहाँ लिखा हुआ है देखो जैकेट। अब इनसाइड द जैकेट क्या है देखो, when the young cell of the jacket contain chloroplast which turns orange or reddish brown at maturity. At the beginning the cells are green color, but they become orange or reddish brown in color at maturity. Here the jacket encloses large number of androcytes or antherozoid mother cells. उसमें क्या है, जैकेट में एंड्रोसाइट्स या एंथेरोजॉइड मदर सेल्स और वेल गैमेट के सेल्स हैं। At maturity, the distal end of the antheridium wears one or two thick-walled colorless cells called as operculum. अब इसको क्या बोल रहे हैं, यहाँ देखो डिस्टल एंड में क्या है, एक से दो सेल है, उसको operculum बोल रहे हैं, क्या बोल उसको, operculum. The opercular cells become mucilaginous, absorb water and cell break connection with the neighboring cell and forms a narrow pores. अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सेल जो है यहाँ अपोरकुलम के, तो क्या कर रहे, वाटर ऑब्जर्व कर रहे हैं और टूट जा रहे हैं। फ्रॉम दैट एंड्रोसाइट्स और मेल गैमेट्स आर रिलीज, एंड्रोसाइट्स और मेल गैमेट्स आर रिलीज। अब हियर दिस इज द मेल गैमेट, एंथेरोसाइट्स नाम दिया इसको, यहाँ ये दिख रहा है ना, एंड्रोसाइट्स और एंथेरोसाइट्स, दैट इज द मेल गैमेट। अब यहाँ देखो ये कर्सर जो है ना, pointer, that is the antherozoids or male. So in this manner the antherozoids or androcytes, they comes
from the entheridium as a male gametes. So here the male gamete is formed. अब नेक्स्ट देखो फीमेल ब्रांचेस और आर्चिगोनियोफोर, इसको क्या बोल रहे हैं? फीमेल गैमेट्स और आर्चिगोनियोफोर. अब याद रखो एंथेरिडियोफोर क्या है और आर्चिगोनियोफोर क्या है. एक्चुअली फोर बोले तो वियरिंग या रखने वाले, PHORE. एंथेरिडियोफोर बोले तो एंथेरिडिया प्रोड्यूस करने वाले, आर्चिगोनियोफोर बोलता है आर्चिगोनिया प्रोड्यूस करने वाले. हियर द फीमेल ब्रांच राइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेल ब्रांच. कहाँ से तैयार होगी देखो, बेस ऑफ द मेल ब्रांच. Longitudinal section of female branch show that many archigonia intermingle with paraphysis. Upper at the apex. So here also the paraphysis are also present here. The function of the paraphysis is same. अब next देखो, the terminal cells of the paraphysis is not swollen. The cluster of archigonia is enclosed by a group of green foliage leaves called pericytial leaves. ठीक है. अगेन यहाँ पे पेरिचिटियल लीव्स है. द आर्चिगोनियल क्लस्टर विद द सराउंडिंग पेरिचिटियल लीव्स इज कॉल्ड एज पेरिचिटियम. ठीक है, और पेरिचिटियम हो. अब नेक्स्ट देखो कैसा आर्चिगोनियम कैसा है. आर्चिगोनियम बोलते एक्चुअली फीमेल सेक्स ऑर्गन. एक्चुअली इट लुक्स लाइक ए फ्लास्क. फ्लास्क बोलते तो सुराई कैसी रहती, पानी की सुराई, दैट इज फ्लास्क लाइक. इट रिमेन अटैच टू द फीमेल ब्रांच बाय मैसिव स्टॉक. इसमें क्या है कि स्टॉक है, देखो यहाँ स्टॉक है नीचे. ठीक है. और उसके बाद क्या, इट कंसिस्ट ऑफ अपर इलोंगेटेड सिलेंड्रल नेक. इसको क्या बोल रहे हैं, नेक बोल रहे. नेक बोलते गर्दन. एंड वेसल ग्लोबुलर पोर्शन कॉल्ड एज द वेंटर. और ये चीज को क्या बोल रहे हैं, वेंटर बोल रहे. अच्छा देखो नेक कैसे, देखो द नेक इज स्लाइटली ट्यूबुलर ट्विस्टेड सिंगल लेयर्ड कंसिस्ट ऑफ 6 वर्टिकल रोज ऑफ द सेल. And here the venter is 2 layered and encloses ventral canal cell and egg. So here the egg is female gamete that is located inside the venter. अब देखो egg कहाँ है, वेंटर में है. वो क्या है, फीमेल गैमेट है, बराबर है. वेंट्रल कैनल सेल इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द नेक कैनल. वेंट्रल कैनल सेल इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द नेक कैनल. बोले तो वेंट्रल कैनल सेल का है, नेक कैनल सेल के नीचे है. अब नेक्स्ट क्या है, फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, इसमें मेल गैमेट तैयार हो गया, उसको बोल रहा हूँ एंथेरोसाइट्स. फीमेल गैमेट तैयार होगा. एक फीमेल गैमेट कहाँ है, वेंटर में है, आर्चिगोनियम में. और मेल गैमेट क्या है, वो मोटाइल है, दैट इज आउटसाइड द प्लांट, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द वाटर. हियर द वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन. बेसिकली in bryophyte, this is the important thing. Water is essential for the fertilization. Without water, the sexual reproduction in bryophyte does not take place. So the bryophytes are known as amphibians of the plants. इनकी जिंदगी मुकम्मल कंप्लीट करने के वास्ते पानी की ज़रूरत निहायत इंतहाई ज़रूरी है. इसलिए क्या हो रहा है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स. जैसा मेंढक है, पानी में भी रहती, जमीन पे भी रहती. इन द सेम मैनर हियर the bryophytes, they are actually amphibians of the plants. अब देखो हाँ, the upper polar cells of the entheridium ruptures. मैंने बताया था मैंने आपको, release and mass of enterocytes. Actually enterocyte was the male gamete. When the archegonium reach at the maturity, the neck canal cell and the ventral canal cell disintegrate. बोले तो गायब हो जाते या डिसॉल्व हो जाते from the mucilage mass. वो डिसइंटीग्रेट हो गया तो मास तैयार हो रहा है, चिकट मास तैयार हो रहा है. It absorbs water, swell and comes out the archegonial mouth by pushing the cover cell upward. This mucilaginous mass consists of chemical substance, mainly sugar. इससे सब्सटेंस क्या है, शुगर है. ठीक है. अब उसके बाद क्या होता है देखो, the enterocytes enters in the venter. Enter in the venter. Many enterocytes enter in the venter. These are the enterocytes. अब इधर देखो, बताता आपको, यहाँ दिख रहा है कर्सर दिख रहा है. These are the enterocytes. They enters in the venter and they reaches to the egg. And here the fertilization or the union of male and female gamete or female nucleus is completed and fertilization ends. Again here the diploid zygote is formed. But this zygote is the first cell of the sporophyte phase
develops sporophyte from the zygote within the venter of the archegonium. So this is about the sexual reproduction. So here you remember that the male branches and the female branches, they are born on the different branches of the same plant. That condition is known as monoecious or autoecious. Here the male sex organ, that is known as entheridium. The female sex organ is that is known as archegonium. The male gamete is enterozyte, the female gamete is egg, and the union of male and female gamete takes place and diploid zygote is formed. That zygote is developed into the sporophytes. अब स्पोरोफाइट कैसा हो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। अब्दुल कवी सर हाँ बोलो। सर आपकी सिलेबस की अपलोड करो ना। हाँ करते करते। हाँ इसमें खाली याद रखो आपके सिलेबस में क्या है, वराइफाइट और टेरिडोफाइट है। क्या है, वराइफाइट में आपको दो पढ़ना है, मार्किंजिया और फ्यूनेरिया। अब नेक्स्ट पीरियड में वराइफाइट खत्म हो जाता है और टेरिडोफाइट देखेंगे अपन, आधा सिलेबस करीब हो गया, ठीक है। वराइफाइट दो से सिर्फ, मार्किंजिया और फ्यूनेरिया, मार्किंजिया और फ्यूनेरिया। अगर दो अच्छे से याद कर लिया, अच्छे समझ गए, हाँ तो आपका 50% कवर हो जाता है। और टेरिडोफाइट है वो नेक्स्ट इसलिए देखेंगे, हाँ सिलेबस में अपलोड कर देता है। और दूसरा कुछ है पूछने का अब्दुल कवी? नो सर। ठीक है। और अस्मा पूछना है कुछ? फती मारिया? नहीं सर, नो। अब्दुल कुद्दूस? नो सर। मुस्कान? कोई मसला नहीं सर, सब समझ में आ गया। फती मारिया? जी सर समझ में आ गया सर। हाँ समझ में आ रहा है ना? जी जी सर। अब देखो ये चीजें क्यों पढ़ना मालूम है क्या आपको? अब हम बारिश में देखते हैं, आप बारिश में देखते ना, अब समझो कॉलेज का ग्राउंड है, हाँ ग्राउंड में कुछ भी नहीं रहता, थोड़े दिन के बाद हरा भरा हो जाता है, देखे होंगे आपने, आ रहा है समझ आपके? हाँ सर। तो कैसा हरा भरा होता है? एक्चुअली दैट इज ड्यू टू द रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन एक तो वेजिटेटिव होता है, असेक्सुअल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट जो है, अब जैसे मैंने बताया आपको, मार्किंशिया जो था, मार्किंशिया क्या था मालूम है क्या? उसका नाम था लीवर वर्ड्स, आपने पहले पढ़े वाला है, हाँ दैट इज ए मेंबर ऑफ क्लास हिपाटिकॉप्सिडा। मैं बताया था कि दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लीवर डिसीज। इसका नाम क्या रखे? इसके वास्ते लीवर वर्ड रख दिए, बराबर है। अब जैसे आजकल डिसीज चल रहा है, देखो कौन सा डिसीज चल रहा है आजकल बहुत, आप सुन रहे हैं ना? आप कौन सा चल रहा है डिसीज? पूरी दुनिया में परेशान है उसमें, आ रहे ना? आवाज आ रही है ना? हेलो जी सर। आवाज आ रही है ना? जी सर। जैसा कोरोना डिसीज है, उसका कैसे अटैक करता है वो? हेलो, लंग्स में करते ना? तो इन द सेम मैनर दैट टाइम द लिवर डिसीजेज दैट इज क्यूर्ड बाय मार्किंशिया, उसका नाम लिवर वर्ड रखे थे। दिस इज द आयुर्वेदिक, जो जड़ी बूटी प्लांट वो जमाने में यूज करते थे। अभी भी क्या कर रहे लोग, कुछ लोग क्या कर रहे, अगर समझो कोरोना होगा तो काढ़ा पिए, फलाना पिए, और पिए ना, बीच में वो चलाना। एक्चुअली दैट इज द प्लांट फार्स, जो दालचीनी है, इलायची है, लौंग है, जो भी बना रहे हो, दैट इज द प्लांट फार्स, ठीक है। अब इसमें दो याद रखो अच्छे से आओ, एक है मार्किंशिया और दूसरा फ्यूनेरिया। और आपको फर्स्ट ईयर में खाली प्लांट का आइडेंटिफिकेशन आना, अलगी कैसी है, पंजाई कैसा है, ब्रायोफाइट कैसा है, टेरिडोफाइट कैसा है, खाली पहचान नहीं पाना आपको, ठीक है। अभी कोई डाउट है क्या इसमें कुछ को? शेख सवीन? नो सर। शगुफ्ता? आलिया? नो सर। आयशा? मुस्कान? कोई डाउट है? ठीक है। नो सर। हाँ डाउट रहा कुछ पूछने का, तो स्पोरोफाइट अपन कल देखेंगे स्पोरोफाइट क्या है, हाँ जो चीज़ बोल रहे हैं अपन याद रखो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने का तो ले सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट लेने का है क्या आपको? ओके सर।
ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। सर ये चैप्टर की वो भेजो सर पीडीएफ ग्रुप में। हाँ वेस्ट है हाँ? ये उसका अगर आप ये लेने का तो लिख के लो। हेलो अगर स्क्रीनशॉट लेने का तो ले लो ये शुरू से। अगर आपको आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा ना काम आ जाएंगे। हाँ स्क्रीनशॉट लेने का तो ले लो, स्लो करता। हाँ एक फ्यूनेरिया की, दूसरा है गैमेटोफाइटिक फेस, तीसरा है देखो ये भी ले लो, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 यहाँ तक ले लो। हाँ अगर तुम रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड करके ले लेना। ठीक है ठीक है। कोई डाउट है अभी कुछ इसको? स्टॉप करेंगे यहाँ पे? नो सर। हाँ स्टार्ट करेंगे, स्टॉप कर देंगे नेक्स्ट डे के आने वाले पीरियड में। अल्लाह हाफिज़।